یہ فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، کل خوانی، باقر خوانی، یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ قرآن خوانی اصال ثواب سنت سے ثابت ہے، لیکن میرے نبی کی سنت سے نہیں، انڈیا پاکستان کے مولویوں کی سنت سے۔ وہ جو حدیث ہے کہ سب سے پہلے کعبے کے ممبر پر اعلان ہوگا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور شعبان المعظم کے مہینے میں ہمارے سنی حضرات خاص کر کے جو ہے شب برات والے دن قرآن خوانی وغیرہ کرواتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور 10-20 آدمی کو بلوا کر، مدرسے کے بچے کو بلوا کر قرآن خوانی وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک کلپ کے طور پر یعنی ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں کہ دیوبندی جماعت سے تعلق رکھنے والے یا اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھنے والے یہ سب کیا ہے، قرآن خوانی کو بدعت کہتے ہیں، یعنی کہ قرآن خوانی نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن خوانی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، قرآن وغیرہ نہیں پڑھوانا چاہیے۔ کون کہتے ہیں؟ یہ دیوبندی جماعت کے لوگ اور اہل حدیث جماعت کے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پورا ویڈیو دیوبندی جماعت کے لوگ بھی اور بریلوی جماعت کے لوگ بھی، دونوں کے ویڈیو کو میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں، اور آپ خود فیصلہ کریں پورے دلیل کے ساتھ۔ جو ہے ہمارے سنی حضرات جو ہے دلیل بھی دیے ہیں، اور پورے دلیل کے ساتھ سنیے اور پھر خود فیصلہ کریں، اور کومنٹس کے ذریعے آپ ضرور بتائیں کہ کیا قرآن خوانی کروانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پھر میں انشاءاللہ آپ سے بعد میں بات کروں گا، پہلے ویڈیو کو دیکھیں۔ میں قرآن پڑھ کے بخشوں، یہ نہیں کر سکتے؟ ہم یہ کہتے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول سے اس کا پروف نہیں ہے۔ قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، اموات بھی اس وقت ہوتی تھی، لیکن کسی صحابی کو یہ نہیں سوجا کہ وہ پڑھ کے اس کو بخش دیں۔ یہ فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، کل خوانی، باقر خوانی، یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ کہ قبرستان جا کر قرآن پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ کے جو ہے وہ آپ قبر والوں کو ایصال ثواب کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جو انسان خود اپنی زندگی میں کرنا ہے، یہ ٹرانسفر یا ایصال کہتے توشے کو، ٹرانسفر نہیں ہوتی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی نہیں کہا ان کے لیے قرآن خوانی کرو۔ آپ کوئی کہے گا نہیں وہ تو بہت نیک تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، تو ٹھیک ہے چلیے وہ چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد صحابہ نے کبھی دوسرے صحابی کے لیے نہیں کیا، نہیں وہ بھی بہت نیک تھے، چھوڑ دیجیے۔ اچھا، تابعین نے کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں کیا، آپ بولیں گے وہ بھی بڑے نیک تھے، چھوڑ دیں۔ اماموں میں سے کسی 4 امام میں سے کسی نے کہا کہ یہ ہوتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے بہت نیک تھے، چھوڑ دیں۔ تو پھر لیں گے کس کو؟ سب کو چھوڑتے جا رہے آپ۔ جب وہ پہلی نسلوں نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے؟ تو لہٰذا قرآن کا ایصال کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں، حالانکہ نبی قرآن خوانی کے معنی کیا ہوتے؟ قرآن پڑھنا، تو رسول اللہ کے زمانے میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا کیا؟ قرآن خوانی کے معنی ہوتے قرآن پڑھنا، نعت خوانی یعنی نعت پڑھنا، میلاد خوانی یعنی میلاد پڑھنا۔ اب سوال کا مقصد وہ ہے، میں چلو بتا دیتا ہوں، اجتماعی طور پر اب یہ ان کے ہاں کتابیں لکھی گئی کہ اجتماعی طور پر قرآن پڑھو تو حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ اب دلیل رسول نے کیا کہ نہیں کیا؟ تو بہت سے کام تو رسول نے نہیں کیا، آپ کرتے ہیں، اور اس کی میں بہت سی مثالیں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ تو ہر کام کی دلیل رسول کیا نہیں ہے، رسول اللہ نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، سرکار نے فرمایا جو ناجائز تھا میں نے تمہیں واضح کر دیا، تم پہ جو حرام تھا میں نے بتا دیا، جو تمہارے لیے جائز تھا وہ بھی بتا دیا، اور جس چیز کے بارے میں نے خاموشی اختیار کی وہ تمہارے لیے مباح ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ اصول دے دیا گیا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیاء العلوم میں کہ کسی نیک کام کو بدعت کہنے کے لیے دلیل اس کے ذمے ہے جو بدعت کہتا ہے، جائز کے لیے اتنا ہی کافی کہ اس کی ممانعت نہیں۔ بہت خوب، یہ تو آپ کو لانا چاہیے کہ اس طرح اجتماعی طور پر قرآن پڑھنا کہاں حرام لکھا ہے؟ کس حدیث میں رسول اللہ نے کہا سب مل کر بیٹھ کے قرآن نہ پڑھو؟ کس حدیث میں لکھا ہے بتائیے؟ خوانی کرنے میں حرج کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ طریقے سے جو بھی کریں گے جائز ہے۔ آپ صحابہ کے زمانے میں ہونا، نبی کے زمانے میں ہونا، تو آج کیا کرتے ہیں ہم؟ پورے اس گھر میں قرآن خوانی ہے تو پورے لوگ گھر میں جمع آتے، 30 بچے، بھائی 30 بچے، ہر بچے کو کتنا ملے گا؟ 100 روپے، 100 روپے۔ وہ پورے بچے آتے، جا کے بولتے آپ جا کے پڑھ کے آنا، وہ پورے بچے جا کے قرآن ختم کر کے آتے، پورے بچے آدھا پارا ہوتے ہوتے 30 آخر میں پیسے دیتے۔ تو برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ،
घरों में जाकर तुम सुन्नते नफिल जो भी पढ़ना है घरों में पढ़ना है। तो बरकत हासिल करने का तरीका भी आपने बता दिया। अपने तरफ से हम जैसे चाहे बरकत हासिल नहीं कर ले सकते, बरकत हासिल करने का तरीका भी बता दिया गया। जो बताया गया बस वो करना है हमको, जो बताया गया हमको वो करना है। जैसे हमारे भाई ने कहा कि भाई अगर मैं कुल या अय्युहल काफिरून खबर पे नहीं पढ़ना है तो फिर मैं नमाज में भी नहीं पढ़ूंगा। तो हम कहेंगे मेरे भाई आपको ये बताया गया, यहाँ कोई इसाले सवाब नहीं हो रहा, अल्लाह की बात हो रही, और यहाँ पर आपको बताया गया नमाज में ऐसा पढ़ना है। खबर पे आपको किसने बताया? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं बताया खबर पर जाकर कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो? बिल्कुल बताया है, बिल्कुल बताया है। नहीं है तो फिर खामोश बैठ जाओ, खामोश नहीं बैठते तो दलील लाओ, दलील नहीं लाते फिर खामोश बैठ जाओ, इतना ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चुनांचे दुनिया में अब भी यही रस्म है 24 नंबर वहाबी सुन कि कोई मर जाता है तो उसकी जुदाई और गम को गुजारने के लिए कुरान शरीफ पढ़ते हैं, लोग मिलकर सिपारे पढ़ते हैं। ये एक अच्छी बात है। मिरकात शरह मिशकात में मुल्ला अली कारी ने लिखा है और लोगों ने भी कि अंसार के यहाँ जब मैयत हो जाती कान अन्नासु यख्तलिफून इला बैतिही व इला कब्रिही व यक़रऊन लहुल कुरान, लोग उसके घर ताज़ियत के लिए और कब्र फातिहा के लिए जाते थे, कुरान पढ़ के बख्शते थे। फतावे आलमगीरी हमारी 500 फुक़हा का मुजम्मा अलैह किताब है। किताबुल जनाइज़ में है कि तदफीन के साथ साथ अगर वहाँ मौजूद लोग एक कुरान भी पढ़ ले और ख़त्म करे तो ये बेहतर होगा। वो ऐसा ज़माना भी दुनिया में हुआ है कि तदफीन के दौरान लोग जो आस पास बैठे हुए हैं वो कुरान मजीद पढ़ते थे और मुर्दे को बख्शते थे। हमारे मुल्क में वाज नसीहत होती है। बुखारी ने बाब कायम किया, बाब मौइज़तिल मुहद्दिस इंदल क़ब्र वक़ूद अस्हाबिही हौलहू। तो वाज नसीहत के बाद वो आलिम दीन कहते हैं कि ये जो वाज हुआ, तकरीर हुई, बयान हुआ, इसका सवाब भी इस मरहूम को मिले। सुभान अल्लाह। बाकी बाद लोग न ये मानते हैं न बहुत सारी चीजें मानते हैं, उनको मैं क्या कहूँ। मैंने मौके पर इमाम काबा को लिखा था कि आप कहते हैं कैदी को छुड़ाने के लिए कुरान पढ़ना बिदअत है, बीमार के शिफायाबी के लिए बिदअत है, घरों की खैर बरकत के लिए बिदअत है, कर्जे उतारने के लिए पढ़ना बिदअत है। मा तरक्तल कुराना इल्ला महला वक़ाल रसूल या रब्बे इन्ना क़ौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। पैगम्बर क़यामत के दिन कहेंगे इस कुरान की इन्होंने बड़ी बेइज्जती की है। और वो जो हदीस है कि सबसे पहले काबे के मिंबर पर ऐलान होगा कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, हम गलती कर रहे हैं। तो लोग समझते थे कि शायद कुर्ब क़यामत में अल्लाह न करे, अल्लाह वो दिन न लाए, राफ़ज़ी मुसल्लत होंगे। मैंने कहा राफ़ज़ियों की ज़रूरत है, आप काफ़ी है, आप सब बातें वही बातें तो कर रहा है। किसी मरहूम के ईसाल सवाब के लिए कुरान पढ़ना या पढ़वाना, इसमें कोई हरज नहीं है, ये पहुंचता है सवाब और बरकत भी होती है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन दूसरी एक चीज़ ये है कि इस तरह कुरान खानी घर में करवाना, ये सारे बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ रहे हों, जैसे मादरत के साथ कुछ बेचारे कम इल्म हाफिज साहब जो होते हैं वो अपने मदरसे के बच्चों को ले आते हैं, जैसे कोई आ गया जी कुरान खानी के लिए बच्चे भेज दें, कारी साहब लेके बैठ गए, तो वो बाकायदा कहते हैं वो ज़ोर से पढ़ो, ज़ोर से पढ़ो। खुसूसन जब थोड़ा सा घर में आहट सी महसूस होती है कि अब न्याज आने वाली है, ये शरबत आने वाला है, तो फिर हम भी चुके ऐसे आम मदरसों में पढ़े हैं, तो फिर वो तहरीक से एक बेदार हो जाती है और सब बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ते हैं। याद रखें इस तरह जमा होकर कुरान पढ़ना हराम है। मदरसे में पढ़ सकते हैं क्योंकि वो कुरान पढ़ना नहीं है, वो तालीम व ताल्लुम कहलाता है। मदरसे में भी बच्चे सारे बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे होते हैं, वहाँ जायज़ है। यह है कुरान खानी, ये तालीम व ताल्लुम नहीं है, ये सिर्फ कुरान पढ़ना है। इसलिए सब अगर बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे गुनाहगार होंगे। ऐसी कुरान खानी ना करवाई जाए, ये कोई मतलब ना सुन्नत है और ना इससे कोई सवाब की तवक्को है। एक तो ये बात। दूसरा, इस तरह कुरान खानी कराना जैसे आपने फरमाया कि औरतें बैठी हुई हैं, शौहरों की ग़ीबतें चल रही हैं, सास की बातें चल रही हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते अरे ये तो बताओ तुम्हारी नंद का क्या हुआ, वो मसला हल हुआ कि नहीं हुआ, फिर नहीं पता नहीं हुआ अभी चल रहा है, अच्छा चलो जी यूँ पढ़ लें, फिर अरे वो हाँ वो तो बताओ क्या हुआ, अरे भाई अच्छा बात कहती है ये सफ़ा मैं पढ़ रही हूँ, ये सफ़ा तुम पढ़ती जाओ, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। और यहाँ तक मनाजिर देखे गए कि एक एक साथ दो दो सफ़े, तीन तीन सफ़े,
और फिर खाने के लिए सब मुस्तैद होकर बैठ जाते हैं। वो बेचारा मुर्दा भी कहता होगा भाई कुछ तो पढ़ देते मेरे लिए, खाने बैठ गए और मैं यहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ। इस तरह छोटे छोटे बच्चों को लाके बिठा देते हैं। तो अगर ये आपस में गुफ्तगू चल रही है और कुरान की बेहुरमती हो रही है, ऐसी कुरान खाने को भी कोई फायदा नहीं। तीसरी चीज याद रखिए, अगर पहले से तय कर ली गई उजरत वगैरह, ऐसा कुरान पढ़वाने का कोई फायदा नहीं, इस पर सवाब नहीं मिलेगा। या आपने किसी से तय किया भाई बैठो कुरान पढ़ लो, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, ये समझ ले कुरान पढ़ने पर इजारा कर लिया गया है, उजरत तय कर ली गई है। और याद रखें जब इस पर उजरत तय कर ली जाए तो कोई सवाब हासिल नहीं होगा। हाँ, वैसे कोई आकर पढ़ ले, आप उसको बख्शिश वगैरह दे दें कोई, वो ठीक है। बाज लोग कबूर पे बिठा देते हैं, कब्र और कब्रिस्तान में लोग होते हैं, अच्छा देखें बाबा जी आप यहाँ रोजाना एक कुरान पढ़ दिया करें, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। याद रखें अगर वो यस कह के पढ़ना शुरू कर देता है, इस कुरान के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सवाब हासिल नहीं होगा। तो नाज़रीन, अभी आपने वीडियो को गौर से देखा और आप खुद फैसला करें कि देखिए कुरान खानी, जो कुरान की तिलावत होती है, आज के टाइम में अहले हदीस जमात के लोग जो है कुरान को भी पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। जरा सोचो यार मेरे भाई, कुरान अगर सब मिलकर इकट्ठे बैठकर कुरान पढ़ेंगे तो क्या इसमें दिक्कत है? क्या कुरान पढ़ना गुनाह है? क्या कुरान हमें नहीं पढ़ना चाहिए? क्या इन लोगों की सोच हो चुकी है, पता नहीं इसके दिमाग में कौन सा ऐसा भूसा भरा हुआ है जो इबादत करने को रोकते हैं। सिर्फ फर्ज फर्ज फर्ज। अहले हदीस तो और जो है बेड़ा गर्क करके रखा है कि 4 रकात फर्ज पढ़ेंगे, सुन्नत से इसको कोई मतलब नहीं है, सुन्नत से कुछ भी मतलब नहीं है। बताओ, तो इस तरीके से जो है अहले हदीस जमात के फिरके वालों से आप लोग जरूर दूर रहें। ये पूरे जो है बेड़े को गर्क करके रखा है। हर एक जो है दुरूद से आपको मना करेंगे, सलाम से आपको मना करेंगे, फातिहा देने दिलाने से मना करेंगे, कुरान खानी से मना करेंगे। आखिर क्यों भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं यार, कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, कोई गाना वगैरह तो नहीं गा रहे हैं। कुरान पढ़ना क्या है? सवाब का काम है। कुरान पढ़ने से हमें सवाब मिलता है। हम इसलिए जो है अपने मरहूमीन के नाम से जो है कुरान खानी वगैरह करवाते हैं, उसके नाम से इसालो सवाब करते हैं। कुरान की तिलावत होने के बाद क्या हम दुआ मांगते हैं? अल्लाह हमने कुरान की तिलावत की, अल्लाह इसके जरिए से हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा दे, यही तो दुआ मांगते हैं। लेकिन आज इनको इनसे भी तकलीफ है। तो ऐसे फिरकों से दूर रहें, मैं हकीकत बता रहा हूं, ऐसे फिरकों से दूर रहें। जो अहले हदीस लोग हैं, ये अहले हदीस नहीं है, अपने आप को हदीस कहते हैं कि हम हदीस पर चलने वाले। हदीस पर चलने वाला अगर होता ना तो फर्ज फर्ज को नहीं पढ़ता, सिर्फ फर्ज पढ़ लेता है, सुन्नत से कोई मतलब ही नहीं होता है, सुन्नत ही नहीं पढ़े। न तो सर पर उसके टोपी होती है, हाथ जो है औरतों की तरह सीने पर बांधते हैं, ये तो हाल है इनका। और जो है आज भोले भाले मुसलमानों को, जाहिल मुसलमानों को जो है अपने बहकावे में यानी लाकर जो है अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इनसे दूर रहें। गुजारिश करता हूं वीडियो को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।